वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम खुशनुमा आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं आप लोग बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे बड़े होंगे। मैं ब्लॉगर्स कुदरत और आप लोगों के लिए वीडियो है हाउ इंडिया ब्लॉक द सक्सेस ऑफ चाइना इन इंडिया अफ्रीकन लेसन। वॉच करेंगे किस तरह जो है इंडिया ने ब्लॉक किया जो चाइना का जो सक्सेस था, जो कामयाबी थी वो इंडिया में। इस पर वीडियो को वॉच करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे लाइक जरूर करिए। अगर मैं सोशल पर फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लोग चेक कर सकते हैं। Let's start. Okay, start. Why do made in China and other foreign products fail in India, Yes. and how this India can खुद be बना रहा है, used in simple Africa सी। to be successful as India? So, have you ever wondered why some products cannot succeed in some countries? One of those cases are products which are labeled made in China in India. The reaction of people towards made in China in India shows that they don't have a place there. When in Africa, no one cares. We consume made in China as usual. Number one, the country itself is very vocal for the local. India itself has a very strong movement supported in every way, from the most powerful person in the government to every citizen in the country, which is the Made in India, because it promotes the value of the country, giving jobs and so many other things, which definitely makes the country a better place. And then just imagine if African countries were doing the same by promoting only and being so vocal about made in African products. Number two is the quality concern. When so many Indians are so much concerned about what's coming from outside, is it going to be a good quality, at least for them to enjoy it on an affordable price? Why, when watching this, it reminds me of how once a product is made in Africa, in my country especially, you have to understand that it will be expensive and there's nothing you can say about it. So going outside makes a better choice. It's still a lesson to learn. And then there is the price against the pride. Indians will prefer paying something which is slightly expensive comparatively to a cheaper one, which does not allow them to feel proud of being an Indian. So they will rather take an expensive or a more price thing just to make sure they keep the pride of India. And that proves the patriotism which every Indian carries in themselves. And it's something very amazing which Africa also should learn in most African countries, that we should put first the pride of our nations and of our continents with the idea of pushing forward the people whom are ours. Number four, the cultural relevancy. When something is made outside of India, it's not made with an Indian in mind as the end consumer or the client. But when something is made in India, the culture, the ideas, the behaviors and everything of an Indian consumer is understood by the producer, which makes that the product which is made internally will have more chances of being chosen first because of the relevancy which it will have with the end consumer. And it's something again which Africa needs to focus on, also making products or aiming to consume products which understand whom you are before they give them to you. And number five, the after sale service. These are things like the warranty and other things which might come after purchasing a product or whatever it might be. When something is made in India, it's so easy to return, to send a complaint, or to use the warranty that you have on the product that you purchased, which cannot be done when the product is coming from outside. Or if it can be done, it's a very quite long process compared to when the product is bought in India. And with all these reasons, it's again one more way to realize that buying something which is made locally is of more advantage comparatively to buying something which is made outside of the country. Thanks so much for being here. Catch you next time. अच्छा, पहले तो इन्होंने तो कुछ रीजंस बता दिए कि क्या क्या रीजंस होते हैं, लेकिन एक चीज मेरे माइंड में ये भी है कि इंडियन जो है, ये बहुत लॉयल होते हैं अपने कंट्री के साथ। ये कई बार हम बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं, मतलब आर्ट टॉपिक से अगर देखी जाए, चाहे मतलब बॉलीवुड हो चाहे क्रिकेट, बहुत ही लॉयल होते हैं, चाहे आम जनता हो या बड़े स्टार्स हो, सेलिब्रिटी हो भी। ये क्या करते हैं, ये अपने कंट्री की जो भी चीज़ होती है उसको प्रमोट करते, सपोर्ट करते हैं, चाहे मतलब प्रोडक्ट हो चाहे बंदा हो, उसको सपोर्ट करते हैं। ये नहीं कि यार इसको गिरा दो, इसकी पाँव की जो ये करो। भाई बात ये है, जो चीजें इंडिया में बन रही है वो मटेरियल सब चीजें इंडिया वालों को पता होती है। जो प्रोडक्ट वाले ले लेते हैं उसको क्वालिटी का पता चल जाता है कि भाई किस तरह क्वालिटी का बना हुआ है। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो बस एक उनको आप दूसरी कंट्री की चीज़ उनके लिए एक ब्रांड बन चुका होता है, चाहे अपनी कंट्री की जितनी भी अच्छी हो, लेकिन उन्होंने लेना बाहर की है, बस उन्होंने एक कल्चर बनाया होता है, माइंडसेट बना हुआ है यहाँ पे कि बाहर की चीज अच्छी इंडिया की। ये चीज मैंने बहुत ही देखी है कि इंडिया अपने कंट्री के साथ एक तो लॉयल होते हैं, हर बंदा चाहे गरीब हो, अमीर हो, सेलिब्रिटी हो, जो भी हो,
चाहे लीडर तक मैं कह सकता हूँ, दुनिया की जो बाकी लीडर्स है उनसे फिर भी इंडिया के अच्छे। तो इन चीज़ों से जो बाकी रीज़न तो इन्होंने बता दिए, लेकिन ये रीज़न भी एक है। एग्जैक्टली ये बात है बिल्कुल। तो दूसरी बात ये भी है कि जो चाइना का पहले आ रहे होते थे वो ये होता था कि ये लोग जब ले रहते थे, एक तो ये बंदा जो है थोड़ा उसमें कंफ्यूज होता है, यार कि मैं लूँगा ऐसा ना खराब हो जाए, फिर मैं इसको रिटर्न भी नहीं कर सकता हूँ, चाइना का आया हुआ है, या तो रिटर्न का ऑप्शन होता ही नहीं था। तो अब इंडिया में जब वो चीज़ें बन जाती है, सपोज एक मोबाइल है, अगर वो कोई मसला आ जाता है उसमें तो वो डायरेक्ट वापस कंपनी को दे सकते हैं। ऊपर से इंडिया जो है दिन ब दिन मतलब हर स्टेप बाय स्टेप जो है हर चीज़ों में थोड़ा बहुत आगे जा रहा है। हाँ, वो उनमें प्रोग्रेस आ रही है बहुत ज़्यादा। जब आ गई, जब डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे तो लोग जो है बाहर की चीज़ें छोड़कर अपनी चीज़ें लेना स्टार्ट करेंगे। वो भी फिर होता है, प्राइसेस भी थोड़े मॉडरेट होते हैं, बाहर की चीज़ों से थोड़े सस्ते होते हैं। अब हम वीडियोस बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो लोग खुद बना चुके होते हैं। बाहर की चीज़ें का ये पॉइंट है कि वो जब आते हैं कस्टम वगैरह ड्यूटीज वगैरह लग जाती है तब महंगा हो जाता है। अब जब कंट्री में खुद बनेंगे तो उस पर ये टैक्सेस वगैरह तो होते ही नहीं है, तो वो बहुत एक अफोर्डेबल प्राइस में कुछ नहीं है। पहली बार कमजोर बनाएंगे, उसके बाद उससे अच्छा बनाएंगे, लेकिन एक कल्चर बनाए होते बहुत सारे। हमारे अफगानिस्तान में ये कल्चर है भाई, ये जर्मनी का है भाई, ये प्लाने का है। अब ये इंडिया में 20 लाख की मैंने सुना है कि बड़ी अच्छी गाड़ियाँ मिलती है, गाड़ियाँ मिलती है 20 लाख नहीं 5 लाख 8 लाख की मिलती है। अच्छी की बात कर रहा हूँ। ये वीडियो मैंने सोचा था ये क्योंकि द रीजन इज वो इंडिया में ही बन रही है, मैन्युफैक्चर इंडिया में हो रही है। जब मैन्युफैक्चर इंडिया में होगी तो उस पर टैक्सेस वगैरह नहीं होगी, कस्टम ड्यूटीज नहीं होगी, तो इजी हो गया भाई, हर कोई ले सकता है, अफोर्डेबल होगा। बाकी ये वीडियो अगर वीडियो पसंद आई प्लीज साथ में जो बेल आइकन है उसे भी लाइक जरूर करें, हम चैनल के सपोर्ट मिल रहा है। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।